Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, tell me the last topic. Good morning, sir. Tell me the last topic. Which chapter was going? Fifth, acid, bases, and salts. And last times we have discussed about the Arrhenius theory of acid and bases. Yes or no? Yes, sir. Yes. So who will define acid? Define acid. Sir, Who will define? हाँ बोलो बोलो कोई बोलेगा? an acid is a substance which, on dissolving in water, give rise to H ion, H plus ion as the only cation. Okay. In short, acid contain H plus मतलब hydrogen ions. बराबर है? Yes, इसी sir. तरह से bases are the substances which contain hydroxide ions. बराबर है? Yes, sir. Bases are the substances which contain hydroxide ions. Now, let us classify acid. शायद आपने acid सुने होंगे, acid के classifications. So here is the classification. First classification is strong and weak acid, bases and alkali. Have you heard about strong acid? कभी सुना है ये नाम? Strong acid. Yes, sir. Which are the strong acid? I would like to say, चलो यहाँ पे. This is hydrochloric acid is the strong acid. This is read as hydrobromic acid. This is called nitric acid. This is called sulfuric acid. देखो यहाँ पे hydrochloric acid, hydrobromic acid, nitric acid, and sulfuric acid. So these are the strong acids. So what are strong acid? The acid which dissociates almost completely in water, resulting and the resulting solution, aqueous solutions contain mainly H plus ions are called, and the concerned acidic radical is called strong acid. मतलब क्या हुआ? The acid which dissociates almost completely in its aqueous solutions, क्या होता है मतलब देखो जरा यहाँ पे, एक मिनट. रोहिता पियुषಗೆ ಪಾನ್ ದಿಕ್ಸಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಪಾನ್ ದಿಕ್ಸಂಗ ಪಿಯುಷ. देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. AQ का मतलब होता है एक्वेस सॉल्यूशन, दैट मींस डिसोसिएटेड इन वाटर. एक्वेस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इन वाटर. समझ रहा है आपको? Yes. So in the aqueous solution, hydrogen ions and chloride ions are separated. This separation is called dissociation. बराबर है ना? Separation is called what? Dissociation. अभी देखो. So if I make the aqueous solution of hydrochloric acid, I will have the ions of H plus and Cl minus. So ये क्या देखो, definition देखो, the acid which dissociate almost completely, ये complete dissociation है, and resulting aqueous solutions contain mainly hydrogen ions, है ना? और what concern acidic radical, ये है acidic radical, जो कुछ इसके साथ रहेगा concern acidic radical. हाँ, तो इतना ही बोलो. एक मिनट, एक काम करता हूँ. The acid which dissociate almost completely, got it here?
समझ में आ गया? जिस एसिड का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है और जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा उसमें रिजल्टिंग हाइड्रोजन आयंस, एंड दिस इज कॉल्ड कंसर्न एसिडिक रेडिकल। कंसर्न का मतलब उससे साथ जो है वो, और एक दिखाता हूँ, चलो एक और H2SO4। H2 plus देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हमने, डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है, 2 हाइड्रोजन आयन लिखा मैंने, और ये एसिडिक रेडिकल जो उसके साथ है ना, जो निगेटिव रेडिकल होते हैं ना वो एसिडिक रेडिकल होते हैं, मालूम है, लास्ट टाइम हमने देखा है, बराबर है। निगेटिव रेडिकल को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। सो इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस जिसका पूरा डिसोसिएशन हो जाता है और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा मिलते, पूरा डिसोसिएशन हो गया तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, उसी एसिड को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर? yes sir. क्या बोला आर्या? आर्य मैंने क्या बोला? कोई बोलेगा? अश्विनी क्या बोला मैंने? देखो यहाँ पे द एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, इतना ही बोलो। जिस एसिड का पूरा डिसोसिएशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना ही बोलो। अश्विनी बोलो। The acid which dissociates completely in the aqueous solution, completely in the aqueous aqueous solution. हाँ, the acid which dissociates completely in the aqueous solution। अभी पूरा डिसोसिएशन हो गया तो you will have, that means we will have more number of hydrogen ions in the solution ना, yes or no? अरे Yes बच्चे sir. लोग, यदि पूरा डिसोसिएशन होता है तो ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन मिलेगा ना, yes or no? Yes. शिवम समझ रहा है? शिवम, मृणय पाटिल, नेहा पाटिल, तनिष, माली समझ रहा है? So the acid which dissociates almost completely to give more number of hydrogen ion in the solutions are called strong acid। अभी weak acid क्या उल्टा रहेगा, देखो। The acid which does not dissociate completely in water and the resulting solutions contain H ions, and the resulting solution contains H ions and the concerned acidic radical in small proportion। यदि डिसोसिएशन पूरा, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा है और कार्बोनिक एसिड लिखा है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। नाउ इफ आई मेक द सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड इन वाटर ना, डिसोसिएशन इज इनकम्प्लीट। यदि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है इसका मतलब सेपरेशन ऑफ आयन पूरी तरह ही नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी, so that is called weak acid। clear shubham? shubham shubham are you there? अरे यस नो तो बोलो ताकि मुझे समझ में आ गया मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। रोहन, am I audible? रोहन, can you hear me? अरे कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो कोई तो बोलो यार। हाँ ठीक है। Yes, sir. वीक एसिड व्हाट? वीक Yes, एसिड sir. का मतलब है, वीक एसिड the acid which doesn't dissociates completely। जिस एसिड में जो एसिड पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीटली उसके आयन अलग नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। और जो एसिड पानी में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह उसके आयंस अलग हो जाते,
that is called strong acid. Know this difference and examples आपको learn करनी होगी. Take this screenshot. हो गया? Yes. Yes, sir. हाँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, H2SO4 है, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. Dissociates almost completely in the aqueous solution, producing large number of hydrogen ions. Weak acid dissociate partially, मतलब incomplete dissociation, producing less number of H ions. और इसे बोलते हैं कंसर्न एसिडिक रेडिकल. HCl के साथ Cl ये रेडिकल है, H2SO4 के पास SO4 रेडिकल है, नाइट्रिक एसिड के पास NO3 एसिडिक रेडिकल है. टेक दिस स्क्रीनशॉट, वही लिखा मैंने. टेक दिस स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. नाउ अभी टाइप्स ऑफ बेसेस देखो यहाँ पे. स्ट्रॉन्ग बेस, अभी उल्टा बेस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस ना. सीधा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH twice calcium hydroxide. This is sodium oxide. All these are the bases. अभी स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे हम? The base which dissociates completely in water and resulting aqueous solutions contain mainly OH ions and concern basic radical. यदि अभी NaOH का डिसोसिएशन होता है, यहाँ पे दिखा है देखो मैंने, डिसोसिएशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड. So when sodium hydroxide or potassium hydroxide or calcium hydroxide dissolves in water, OH ions are produced in more number. इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे, कंप्लीटली आयन एक दूसरे से अलग हो रहे. डिसोसिएशन का मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस. सो यदि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व कर दिया, so ions get separated, so there is complete dissociations of the bases. कंप्लीट डिसोसिएशन यदि हो गया तो OH आयन की संख्या बढ़ जाएगी. ओके, सो जिस सॉल्यूशन में ज्यादा संख्या में OH आयंस है उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेसेस. उल्टा क्या रहेगा? जिस सॉल्यूशंस में जो बेसेस बोले सके, जो बेसेस सो हो गया वीक बेस. यदि वो Hello. वेदांत आ रही मेरी आवाज? Yes, sir. ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट लीजिए. Done, sir. डन. ये भी लीजिए. हो गया? Yes. Yes, Now, sir. यहाँ पे एक अल्कली लिखा है, अल्कली. The bases which are highly soluble in water are alkali. ध्यान में रखो, all bases are not soluble in water. There are some bases which are soluble in water. The bases which are soluble in water are called alkalis. ध्यान में रखो, all bases are not soluble. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस भी है, इसे हम अल्कली भी बोलेंगे बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर.
इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ऑल दीज आर bases and they are called alkali because they are strongly soluble in water. ठीक है. Now next point आ रहा है, इसी तरह से हमने क्या क्लासिफाई किया, एसिड और बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस. Now the next criteria for classifications on the basis of the number of hydrogens ions also acids are classified. देखो यहाँ पे, ये पहले जान लो what is basicity of acid. The number of hydrogen ions obtainable by the dissociation of one molecule of acid is called basicity of acid. यहाँ पे देखो, ये एसिड्स हैं, मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है. So when it dissociates into water, it gives one hydrogen ions. So इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी 1 हो गया. ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. When it dissociates, when it dissolves into water, it gives 2 hydrogen ions. तो इसका बेसिसिटी 2 हो गया. इसी तरह से when the acids, when one molecule of acid dissociates into water, how many hydrogen ions it gives, that is called basicity of acid. समझ में आ गया? Are you getting? बेसिसिटी का मतलब, बेसिसिटी एसिड की होती है. अरे आर यू गेटिंग? यस. कोई भी एसिड जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो उस एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, उसे बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. इन द सिमिलर वे, व्हेन द बेसिस डिसॉल्व्स इन वाटर, how many hydroxide ions are given, that is called basicity of, sorry, acidity of the base. Acidity of the base. यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद यू गेट 1 हाइड्रोक्साइड आयंस. सो दिस इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस. मोनो एसिडिक बेस. इसी तरह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स 2 हाइड्रोक्साइड आयंस. सो इसका एसिडिटी हो गया 2. इसी तरह से नंबर ऑफ hydrogen ions is called basicity of acid and number of hydroxide ions is called acidity of base. On the basis of this, यहाँ पे देखो अभी, tell me how many hydrogen ions, HCl में हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 1. सो यहाँ पे लिखो मोनोबेसिक एसिड. यहाँ पे लिखो मोनोबेसिक एसिड. लिखा आपने? मोनोबेसिक एसिड लिखा. नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन आयन एक ही है, सो दिस इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड. लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहे हैं क्या? यस सर. डाई बेसिक एसिड. यहाँ पे ये देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन 2 हैं. डाई बेसिक एसिड. डाई बेसिक एसिड. ये है बोरिक एसिड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सो इट इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड. ट्राई बेसिक एसिड. ट्राई बेसिक एसिड. दिस इज है फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज 3 हाइड्रोजन है, सो दिस इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड. ट्राई बेसिक एसिड. यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन जो लास्ट है ना, वो ही सेपरेट होते हैं.
सो ये बन गया मोनो बेसिक एसिड। यहाँ पे ये हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होते, यही होता है, तो ये हो गया मोनो बेसिक एसिड। गॉट इट? क्लियर? Yes. Yes, sir. इसे नीचे नीचे देखो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH है, सो दिस इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। देखो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। यहाँ भी OH एक ही है, सो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। यहाँ पे OH दो है, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। यहाँ पे OH दो है, सो डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। यहाँ पे OH तीन है, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। यहाँ पे भी तीन है, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक। और यहाँ पे OH एक है, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, MONO, मोनो एसिडिक बेस। हो गया? Yes. अभी नेक्स्ट टाइम आ रही है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये जरा अलग है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज डिफरेंट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज डिफरेंट। सो कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ बोलो। सर वो वाला दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। अभी आपने लिखा ना, हाँ ले लीजिए, चलो ठीक है। हो गया? यस सर। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, देखो यहाँ पे क्या है। सपोज दो स्टूडेंट है, दोनों के हाथ में ग्लास है, एक गिलास में 100 ml 100 मिलीलीटर पानी है, दूसरे गिलास में 50 मिलीलीटर पानी है, आधा पानी है। एक गिलास पूरा भरा हुआ, एक गिलास में आधा पानी है। नाउ यू हैव बीन गिवन अ लेमन, आपको दोनों को एक लेमन दिया है। नाउ यू हैव टू कट द लेमन इनटू 2 हाउस, आप लेमन कट करो, और आधा जो लेमन है ना, it is squeezed in that in or glass both the glasses. Now जिस ग्लास में पानी पूरा पानी था 100 ml वाटर, और जिस ग्लास में आधा पानी था 50 ml वाटर, now you tell me when you taste the solutions, which solutions will be more sure to taste? 100 ml पानी में आपने आधा नींबू निचोड़ लिया है, और दूसरे गिलास में 50 ml पानी है, उसमें भी आपने आधा नींबू निचोड़ लिया है, बराबर है ना? तो यू टेल मी नाउ विच सॉल्यूशंस विल बी मोर श्योर टू टेस्ट? 15 ml. वेरी गुड, इट इज 50 ml. सो इसका मतलब द सेकंड ग्लास, द वाटर कंटेनिंग, द 50 ml वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन ना इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आ गया? तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? यहाँ पे देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट। सो सोल्यूट का मतलब यहाँ पे जो आपने लेमन लिया है ना, लेमन जूस इज द सोल्यूट, और पानी हो गया उसको जब लेमन जूस को आप पानी में डालते हैं तो बन गया सॉल्यूशन। हाँ, solute, the substance that dissolves in the solution is called solute. यदि मैंने, चलो दूसरा भी एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे तो क्लियर हो गया। Concentrated, that means containing more amount of solute. A second example, suppose once again you have 50 ml of water in one glass and 100 ml of water in another glass. Now in the first glass you add 5 gram of sodium chloride. Sodium chloride का मतलब नमक होता है। In one glass I added 5 gram of sodium chloride. In the second glass I also added 5 gram of sodium chloride. Now which solutions will be saltier to the taste? Tell me. अब ये सॉल्यूशन सॉल्टी बन गया ना, तो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्टी लगेगा?
50 ml का ज्यादा रहेगा, राइट, बिकॉज 50 ml में 5 ग्राम है और वहां पे 100 ml में 5 ग्राम है। इसी तरह से जहां पे क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ज्यादा होती है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि कौन से भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो बनता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट? नाउ द Yes, sir. concentration is represented in gram per liter, that means 1 लीटर में कितना ग्राम है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। और मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल है ना। मोल क्या होता है हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। टेल मी फर्स्ट मोल, मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल। टेल मी मोल, मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? कोई बोलेगा मोल क्या है? अरे मोल क्या है, मालूम नहीं ना, भूल गए आप लोग। When the molecular mass is expressed in gram, it is called mole of that substance। मालूम नहीं ये? When the molecular mass is expressed in gram, it is called mole of that substance। मालूम नहीं क्या? पढ़ना चाहिए था। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने? अभी आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे आपके बुक में एक चार्ट है ना। Yes. हाँ, अभी चार्ट Yes, देखो ऐसे। हाँ देखो, ये चार्ट कैसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। हाँ, क्या क्या दिया, नेम दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में उसका वेट दिया है, मोल है, लीटर है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड का फॉर्मूला है, ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। आपको फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन। You have to find the concentration in gram per liter as well as in mole per liter। आपको concentration find out करना है। The first example is salt, NaCl is called sodium chloride। Molecular mass of sodium chloride is 58.5 Dalton। Molecular mass of sodium chloride is 58.5 Dalton। Now you have been given the salt 117 ग्राम। आपके पास जो सॉल्ट अभी दिया है आपके सर ने वो है 117 ग्राम। अभी देखो यहाँ पे, टेल मी व्हाट इज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल क्या होता है, बोलो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 58.5 Dalton. हाँ, 58.5 डाल्टन ना। वो मॉलिक्यूलर मास 58.5 डाल्टन है ना, उसको ग्राम में मेजर करो, 58.5 ग्राम बोलो। इट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास दिया है 58.5 डाल्टन। सो यदि मैं बोलता हूँ 58.5 ग्राम बोलता है तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो जो मॉलिक्यूलर मास है ना उसे ग्राम में मेजर करो, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। सो टेल मी 117 ग्राम कितना मोल होगा फिर? अरे 58.5 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। 58.5 का मतलब है 1 मोल, तो 117 ग्राम कितना मोल होगा? देखो 58.5 ग्राम 1 मोल, तो 117 ग्राम कितना मोल बनेगा? अरे 58.5 का डबल है ना 117,
डबल ऑफ 58.5 इज 178। इसका मतलब ये 2 मोल हो गया, इसलिए आपका आंसर है 2 मोल। देखो यहाँ पे मोल 2 मोल है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो 117 ग्राम डिसॉल्व्स इन 2 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो गया? 117 ग्राम डिसॉल्व्स इन 2 लीटर, तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होता है? हाँ बोलो। अरे यहाँ पे देखो यार, 117 ग्राम डिसॉल्व्स इन 2 लीटर, सो 1 लीटर में कितना हो गया? 58.5 58.5 हाँ, देयरफॉर 58.5 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में हो गया 58.5 ग्राम, सो दिस इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर, 58.5 ग्राम। अभी देखो 2 मोल डिसॉल्व्स इन 2 लीटर, सो 1 मोल 1 इन लीटर, ये हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी, ये हो गया मोलैरिटी। अभी दूसरा लिखो, यहाँ पे नाम लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखा। In the last chapters, we have calculated molecular mass of hydrochloric acid. Do you know molecular mass of hydrochloric acid? In the last chapter, यहाँ पे लिखो 36.5 डाल्टन, 36.5 डाल्टन हो गया। नाउ यहाँ पे देखो, अरे हो गया, एवरी टन 36.5 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, 36.5 डाल्टन लिखा आपने। Yes, Yes, sir. sir. अभी आपको वेट कितना दिया है? 3.65 दिया है, सो यहाँ पे आपको लिखना है मोल, लिखना है। लिखो मोल कितने, आप एक काम करो 36.5 को 3.65 से डिवाइड करो। लिखो यहाँ पे 36.5 डिवाइडेड बाय 3.65, कितना आंसर आता है? नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया रे। आपको क्या करना है, 3.65 करो, 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 करो, 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 करो, कितना आंसर आता है? One mole. कितना था? यहाँ पे आंसर लिखो 0.1 मोल लिखो। कितना लिखना है आपको यहाँ पे? यहाँ से करना है डी अपॉन सी है ना, डी, डी मतलब ये 3.65, सी मतलब यहाँ पे कितना दिया था 36.5। यहाँ पे आंसर लिखो 0.1, लिखा आपने 0.1? Yes, sir. एक है 0.1। अभी देखो लीटर उसने दिया है 3.65 ग्राम डिसॉल्व्स इन 1 लीटर, 3.65 ग्राम डिसॉल्व्स इन 1 लीटर, तो ग्राम पर लीटर कितना? लिखो 3.65 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है ना, सो लिखो 3.65 ग्राम पर लीटर, 3.65 ग्राम पर लीटर हो गया। Yes. और यहाँ पे देखो Yes, sir. 0.1, यहाँ पे 0.1 आया था, तो यहाँ पे लिखो 0.1 मोल, 0.1 एम लिखो, यहाँ पे लिखो 0.1 एम हो गया। Yes, sir. 0.1 एम। अभी लिखो यहाँ पे, इसका नाम लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखो 40 डाल्टन, मॉलिक्यूलर मास है 40 डाल्टन, मॉलिक्यूलर मास 40 डाल्टन। अभी आपको बोलो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? व्हाट इज 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड?
मॉलिक्यूलर मास कितना है बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 डाल 40 डाल्टन। सो 1 मोल कितना हो गया? अरे 1 मोल हो गया 40 ग्राम ना। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम होगा कि नहीं? 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम होगा कि नहीं? Yes. हाँ, तो 1.5 मोल कितना होगा? यहाँ पे लिखो 1.5 मोल होता है 60 ग्राम। यहाँ पे लिखो 60 ग्राम, 60 ग्राम। अभी 60 ग्राम 2 लीटर में डिजॉल्व, या 2 लीटर दिया है, 60 ग्राम 2 लीटर में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो 30 ग्राम 1 लीटर में, लिखो 30 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे लिखो 30 ग्राम पर लीटर, हाफ करना है। नाउ 1.5 मोल इन 2 लीटर, तो 1.5 का हाफ कितनी, लिखो यहाँ पे 0.75 मोल पर लीटर। क्यों 0.75 एम लिखो, कैपिटल एम, 0.75 एम, 0.75 एम। ऐसे टेबल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। हो गया? Yes. Yes. आगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रही है, पीएच। आपने सुना ये नाम, पीएच सुना है? कभी सुना है क्या पीएच? अरे कभी पीएच सुना है क्या? No, sir. नो सर। टीवी में एक एड आती है, देखो, एक डव सोप की एड आती है, डव सोप की। वहां पे एक वुमेन दिखाई है, वो उसके हाथ में एक पीएच पेपर, येलो कलर का पेपर होता है। वो पीएच Yes, sir. वो Yes, येलो sir. कलर का पेपर वो डव सोप को टच करती है तो उसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल Yes. सोप चेंज करती है तो वो ब्लू कलर बन जाता है। सो पीएच क्या होता है? पीएच देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, that is determined by using the pH of the solution। तो pH क्या होता है? द नंबर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। कौन से भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH ऑफ द सॉल्यूशन। अभी ध्यान में रखो, यहाँ एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻�0। यहाँ पे लिखा मैंने 10⁻�0 का मतलब कितना होता है? 10⁻�0 कितना है? 10⁻�0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? सो 1. 1 और 2 10⁻⁻⁴। इसका मतलब हाइड्रो कौन से भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 से 0 से और 1